Hello friends, after the completion of orthogonal spheres, today our topic is coaxial spheres. Before starting with the definition of coaxial sphere, I am going to explain what radical axis of two spheres is. A quadratic equation of the form f of x, y, z is equal to x square plus y square plus z square plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus d is equal to 0 represents a sphere and let P be any point to the given sphere with center O. कोई भी ऐसी क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, स्फीयर को रिप्रेजेंट करती है. अगर वो 3 वेरिएबल्स में होती है, 2 वेरिएबल में होती है तो इट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल. इफ इट इज इन अ 3 वेरिएबल देन इट रिप्रेजेंट्स अ स्फीयर. Let P be any point to the given sphere. So suppose we have taken a sphere f of x, y, z and let P be any point on this given sphere with a center O and radius r. The power of the point P with respect to the given sphere is given by O क्या है आपका center, P हमने कोई एक point लिया sphere के ऊपर, then what will be the power of that particular point P is given by OP square minus R square. If P is an external point to the sphere and T is a point on the sphere such that PT is a tangent to the sphere, then the power of P with respect to the given sphere is the square of the length PT. अब P अगर कोई भी एक external point है to the sphere, so it lies outside the sphere, and from that point P, if we join a line between P and any point on the sphere, say T, so, line from P to T represents a tangent to the sphere. And when you join this tangent to the center of the sphere, so from center what we will have a perpendicular from O, center हमने O रखा था, so we will have a perpendicular from O to PT. And when we join OP, then what we will get? We will get a right angle triangle. And when we have a right angle triangle, then we have a hypotenuse property, Pythagorean property, that is hypotenuse square is equal to perpendicular square minus base square. So from that we can get the value of PT, and when we square the value of PT, that will be equal to the power of the point P. Or simply you can say that what will be the point P is, suppose that point is A, B, C, then simply if we put that particular point in our given equation of a sphere, then we will get the power of P. Next definition is radical axis. So power of a point की definition इसीलिए आपको explain की गई थी, so that we can easily understand what radical axis is. The radical axis of two spheres is the locus of the points with equal powers with respect to two spheres. Suppose we have two spheres and there is some point P lying outside or lying on the sphere. Then from that particular point and with respect to the given spheres, we can find out the power of the P. If the power of the P from with respect to both the sphere is same, and if we trace out that particular path with respect to that particular point P, then that path will represent the radical axis. So radical axis basically क्या चीज है कि आपके पास आपने कोई point लिया random, अब हमें पता ही नहीं कि P point है क्या, it can be A, B, C, it can be x1, y1, z1. So कोई भी एक random point जब हमने लिया and with respect to that point हमने with respect to given spheres उस point के हमने क्या find out कर लिया, उस point का power find out कर लिया. अगर उस पॉइंट की पावर जो है उन स्फीयर्स के विद रिस्पेक्ट टू सेम आ जाती है, तो उस पॉइंट के द्वारा बनाया गया पाथ, द पाथ ट्रेस्ड आउट विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड द रेडिकल एक्सिस, और यू कैन से दैट लोकस ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है, तो सेम इज द केस. सो रेडिकल एक्सिस ऑफ टू स्फीयर्स, सपोज अगर अब हमारे पास दो स्फीयर्स हैं वहां पे, तो क्लियरली वो क्या चीज बनेगी, हमारे पास एक लाइन बनेगी. ठीक है, तो सिंपली वो लाइन फाइंड आउट कैसे की जाती है कि सपोज हमारे पास कोई भी दो स्फीयर्स हैं, हमने उनको आपस में क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है. सो टू ये आपस में सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक्स के से कट जाएगा, वाई के से कट जाएगा, जेड के से कट जाएगा. सो फ्रॉम हियर
वी हैव डिफरेंट सेंटर्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू कैपिटल U माइनस स्मॉल u, 2 इंटू कैपिटल B माइनस स्मॉल b प्लस 2 into W minus small w z plus D minus D is equal to 0, which is a required equation of a radical axis. So in case अगर हमें दो spheres दिया हुआ है and the question is to find out the radical axis, तो simple way out is कि हमने उन दोनों spheres को आपस में क्या कर देना है, subtract कर देना है, ठीक है. So from there we can get the equation of the radical axis. So here is the construction of the radical axis. अब radical axis हमें कैसे पता लगा कि वो एक straight line है. So let us consider two spheres. हमने ये दो sphere ले लिए यहाँ पे, एक का हमने center रख दिया O1, दूसरे का हमने center रख दिया O2, और कोई हमने एक point ले लिया P1 और कोई एक हमने point ले लिया P2, जिसके with respect to हमने power की बात करनी है. हमने P1 और P2 को join कर दिया आपस में, ठीक है. O1 और O2 को join कर लिया आपस में. अब कंसीडर किया हमने इन दोनों पॉइंट्स को विद रिस्पेक्ट टू दिस, और ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन O1 एंड O2 सच दैट कि O1 P1 जो है वो परपेंडिकुलर हो जाए O1 के ऊपर, O2 P2 जो है वो परपेंडिकुलर फॉर्म करे O2 के ऊपर. ये देख रहे हैं आप, P O2 जो है P2 O2 वो परपेंडिकुलर बना रहा है O2 के ऊपर, और P1 O1 जो है वो परपेंडिकुलर बना रहा है O1 के ऊपर. If the perpendicular bisector of P1 and P2, हमने P1 और P2 से क्या किया, उसका perpendicular bisector ड्रॉ कर दिया, इंटरसेक्ट करता है लाइन ज्वाइनिंग O1 और O2 को at Q and Q dash. किन्हीं मान लो हमने perpendicular bisector ड्रॉ किया, तो हमने कहा मान लीजिए कि P1 और P2 का जो perpendicular bisector था वो इंटरसेक्ट कर रहा था O1 और O2 को at the point Q and Q dash such that, किस तरीके से कि O1 Q dash is equal to Q O2 dash, O2 के बराबर हो. मतलब O1 से Q dash तक का जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस जो है वो Q से O2 तक का हो, ठीक है. And O2 Q dash is equal to Q O1. सेकेंड थिंग उसने क्या कही है यहाँ पे कि O2 Q dash, ये O2 और Q dash मतलब कि इस सेंटर से Q तक का डिस्टेंस और O2 से Q dash तक का डिस्टेंस ये आपस में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. इन अ सेम वे O1 से Q dash तक का डिस्टेंस और O2 से Q का डिस्टेंस आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. अगर ये डिस्टेंसेस आपस में इक्वल हो जाते हैं तो इट इज अंडरस्टूड कि Q और Q डैश कोई अलग पॉइंट्स नहीं है, वो सेम पॉइंट है. और ये चीज पॉसिबल ही कब होगी, जब perpendicular to O1 and O2 is at Q dash. तो Q dash जो है वहां पे क्या बन जाएगा फिर बेटा, जो लाइन परपेंडिकुलर Q dash से पास कर रही है, जो परपेंडिकुलर बना रही है O1 O2 के ऊपर, वो क्या कहलाएगी, हमारी रेडिकल एक्सिस कहलाएगी, ठीक है. द सेम कंडीशन इज दैट कि हमने P1 और P2 कोई भी रैंडम दो पॉइंट्स लिए, हमने उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, हमने कहा मान लीजिए उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वहां पे आके कट कर जाता है, ठीक है. जस्ट हमने दो डिफरेंट लाइंस शो की हैं यहाँ पे, तो अगर मान लो वो कट कर जाता है वहां पे, तो वो कहता है कि कौन सी कंडीशन पे वो परपेंडिकुलर जो है वो रेडिकल एक्सिस बनेगा, जब उस पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस उन दोनों स्फीयर्स के सेंटर से क्या हो जाए, सेम हो जाए. कि मतलब पहला स्फीयर था उसका सेंटर था O1, O1 से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, और दूसरा हमने सेंटर लिया था O2, O2 से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो आपस में क्या हो जाए, सेम हो जाए. तो इन दैट केस P1 और P2 के द्वारा बनने वाला परपेंडिकुलर किसके ऊपर, उस लाइन के ऊपर जो सेंटर्स के द्वारा ज्वाइन करके बन रही है, तो इन दैट केस वो लाइन जो है वहां पे क्या कहलाना शुरू हो जाती है, रेडिकल एक्सिस कहलाना शुरू होती है. मतलब कंडीशन इज दैट कि वो पॉइंट दोनों जगह से बराबर डिस्टेंस पे होना चाहिए. अगर वो बराबर डिस्टेंस पे नहीं है तो फिर इन दैट केस वो रेडिकल एक्सिस नहीं बनेगी, ठीक है ना. सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये चीज भी हमारे पास आ जाती है कि अगर हमारे पास कोई अपना ये जो ऐसा सिस्टम ऑफ स्फीयर्स आ जाए हमारे पास, ठीक है ना, जिसमें कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट से हमारे पास पावर जो है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो इन दैट केस वो पॉइंट्स जो हैं, वो सेंटर्स जो हैं वो क्या होने शुरू हो जाएंगे, कोलिनियर होने शुरू हो जाएंगे. फिर कोलिनियरिटी की प्रॉपर्टी भी क्या होती है, यही होती है ना कि वो सेम लाइन में होना चाहिए. तो सेम लाइन में शो करने के लिए आप उनको क्या शो करते थे, आप बेसिकली उनके बीच के डिस्टेंसेस के रिलेशंस फाइंड आउट करते थे. तो यहाँ पे भी हम क्या देखेंगे कि अगर मान लो यहाँ पे हमने दो अभी स्फीयर लिए O1 और O2 के सेंटर के साथ,
ठीक है। तो हमने कहा कि जिस पॉइंट पे भी कट कर रहा था O1 का डिस्टेंस उस पर्टिकुलर पॉइंट Q से और O2 का डिस्टेंस उस पर्टिकुलर पॉइंट Q से क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम ये मान लेंगे कि वो रेडिकल एक्सिस है। अगर तीसरा स्फीयर भी यहाँ पे आ जाएगा तो यही प्रॉपर्टी वहाँ पे भी क्या कर जानी चाहिए, होल्ड कर जानी चाहिए। ठीक है, अब होल्ड करनी चाहिए और वो रेडिकल एक्सिस बना रहा है तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। अब स्ट्रेट लाइन किसी भी एक लाइन को तभी कट करेगी जब उस पे आने वाले जितने मर्जी स्फीयर्स हो उनके सारों के सेंटर्स जो है वो क्या आ जाए, एक ही लाइन पे आ जाए। तो इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आती है दैट इज द रेडिकल सेंटर ऑफ थ्री स्फीयर्स। सपोज हमारे पास तीन स्फीयर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमने कंसीडर कर लिया तीन स्फीयर्स यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2u1x प्लस 2v1y प्लस 2w1z प्लस t1 इज इक्वल टू 0। अगेन नेक्स्ट मैंने u2 v2 और w2 से ले लिया और थर्ड स्फीयर जो है उसके कंपोनेंट्स मैंने u3 v3 w3 और t3 से ले लिया। ठीक है ना। Now the radical axis of the three pair of sphere is, अब डेफिनेटली अगर मुझे रेडिकल एक्सिस फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करूँगी, कोई भी दो स्फीयर्स को यहाँ पे उठा लूंगी और उन दोनों का क्या ले लूंगी, डिफरेंस ले लूंगी। और वो डिफरेंस जो है वो मुझे क्या प्रोवाइड कर देगा, वहां पे रेडिकल एक्सिस प्रोवाइड कर देगा। इफ द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर आर नॉट ऑन द लाइन, जो स्फीयर के सेंटर्स हैं, if they are not on the line, the three radical axes intersect at a point। अगर आपके तीन स्फीयर्स जो हैं वो कहीं पे भी हैं रैंडम, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि उनके सेंटर्स एक ही लाइन में पड़े। अगर वो कहीं पे भी पड़े हुए हैं, हमने तो रेडिकल एक्सिस कैसे निकालनी है, हमने तो टेकन टू स्फीयर्स एट अ टाइम करनी है ना। हमने जब दो स्फीयर लिए, हमने उन दोनों के हिसाब से लिया तो उन दोनों के सेंटर्स तो सेम लाइन पे होंगे। तीसरे स्फीयर का सेंटर जरूरी नहीं है सेम लाइन पे हो, वो तो तभी होगा जब वो कोलिनियरिटी की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। ठीक है, तो अगर तीसरा वो कहता है कि सेम पॉइंट पे नहीं है तो इन दैट केस आपके पास तीन रेडिकल एक्सिस आ जाएंगे वहां पे, क्योंकि आपके पास तीन स्फीयर्स हैं S1 S2 और S3। सपोज अगर मैंने स्फीयर्स के नाम रख लिए तो S2 माइनस S1 मुझे पहला रेडिकल एक्सिस दे देगा, S3 माइनस S2 मुझे दूसरा रेडिकल एक्सिस दे देगा, ऐसी S3 माइनस S1 जो है वो मुझे तीसरा रेडिकल एक्सिस दे देगा। आप माइनस का ऑर्डर जो मुझे रख सकते हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। यू कैन आल्सो टेक एट S1 माइनस S2, S2 माइनस S3 एंड S3 माइनस S1, साइक्लिक ऑर्डर में भी चला सकते हो। ठीक है, तो तीन एक्सिस को आपने क्या किया, वहां पे बन की आपके पास तीन रेडिकल एक्सिस। अब तीन रेडिकल एक्सिस जो हैं जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा यहाँ पे, उसका रेडिकल एक्सिस कहलाएगा, रेडिकल सेंटर कहलाएगा। सॉरी, इफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर्स आर नॉट इन अ लाइन, the three radical axes intersect at a point which has equal power with respect to the three spheres, then this is called the radical center of the थ्री स्फीयर। तो वो जो पर्टिकुलर पॉइंट आपके पास आएगा उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, रेडिकल सेंटर उन तीनों स्फीयर्स का कहेंगे। तो आपके पास कई बार ये क्वेश्चन भी आया था, फाइंड द रेडिकल सेंटर। तो इन दैट केस आपने क्या करना है, जो भी स्फीयर्स आपको दिए होंगे आपने वहां से रेडिकल एक्सिस फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली तीन इक्वेशंस आ जाएंगे आपके पास एक्स वाई जेड में। ठीक है, तो थ्री वेरिएबल की इक्वेशन, फोर वेरिएबल में इक्वेशन आ जाएगी क्योंकि वहाँ पे एक कांस्टेंट भी होगा आपके पास। तीन आपके पास आपके वेरिएबल्स हो जाएंगे और चौथा आपका कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो फोर टर्म्स की आपके पास तीन इक्वेशंस आ जाएंगी। तो जैसे हम लीनियर इक्वेशंस को 10th क्लास में सॉल्व करते थे बाय सब्स्टिट्यूशन और बाय एलिमिनेशन, तो हम क्या करेंगे, जो तीन इक्वेशंस हमारे पास आएंगे उनमें से कोई दो इक्वेशंस निकालेंगे एंड फ्रॉम दैट वी विल गेट द पॉइंट्स एक्स वाई जेड। और जो पॉइंट एक्स वाई जेड हमारे पास आएगा दैट पॉइंट इज नोन एज द रेडिकल सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन आती है दैट इज कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर। Right now I'm just discussing the theory part in this lecture. For numerical, you watch my next video. So our system of sphere is coaxial if every pair of sphere has the system from the system has the same radical axis। मतलब अभी हमने पीछे जो क्वेश्चन किया उसमें हमने ये कहा था कि हमारे पास स्फीयर्स कहीं पे भी हो सकते हैं, ठीक है, और जरूरी नहीं कि उनके सेंटर्स जो हैं वो एक ही लाइन पे लाई करते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे वो क्या बात कह रहा है कि अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम ऑफ स्फीयर्स आ जाता है, ठीक है, जिसमें आप कोई भी दो स्फीयर्स उठाते हैं और उनका जो रेडिकल एक्सिस आपके पास आता है वो सेम आता है। सपोज वी हैव थ्री स्फीयर्स S1 S2 S3 एंड इफ वी फाइंड विद रिस्पेक्ट टू दीज थ्री स्फीयर्स थ्री रेडिकल एक्सिस जो आएंगी S1 माइनस S2 से, देन S2 माइनस S3 से, देन S3 माइनस S1 से। इफ
from these three spheres we are getting three radical axes, and if that three radical axes are same, then that particular system of sphere is called a coaxial system. And this is that particular case जिसमें उसके centers को क्या होना पड़ेगा, एक line में ही होना पड़ेगा. And because of that reason, because of this particular definition, we can say that कि coaxial system के जो भी अपना spheres हैं, उनके जो centers हैं, they are always collinear because they have same radical axis, and same radical axis is possible only when all the points of the spheres, either we have three spheres or we have four spheres or we have n numbers of spheres, if we want they have same radical axis, then they should be on a same line. So in that case हमारे पास ये रिजल्ट भी आता है यहाँ से कि अगर हमारे पास एक जो सिस्टम है स्फीयर्स का वो कोएक्सियल है, तो इन दैट केस जो उनके सेंटर्स होंगे दे आर ऑलवेज कोलिनियर. So आगे चलते हैं. Therefore, coaxial system of sphere is defined by the radical axis at any one of the sphere. तो इस कारण से जब हमने coaxial system of spheres को find out करना है, radical axis find out करने का तरीका तो procedure तो we have seen already कि just take the difference of two spheres and we will get a radical axis. So in case we have a radical axis and we have any equation of a sphere, तीन में से, चार में से, पांच में से कोई भी एक इक्वेशन ऑफ स्फीयर हमारे पास है, एंड वी हैव टू क्रिएट अ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स, देन वो किनकी मदद से बनेगा, रेडिकल एक्सिस की और एनी ऑफ द स्फीयर की हेल्प से बनेगा. हमने ऑलरेडी भी प्रीवियस लेक्चर्स में ये एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं कि व्हेन वी हैव सम लाइन और प्लेन और वी हैव सम स्फीयर, देन बाय कंबाइनिंग द स्फीयर एंड अ प्लेन व्हाट we will get another sphere. So in that case if we use the same radical axis and any equation of a sphere, then by the combination of that particular radical axis and a sphere, the sphere we got belongs to the coaxial system of a sphere. Since we know that the radical plane of two spheres is perpendicular to the line joining their center, therefore take the line of a center of a coaxial system of spheres as the x-axis and the radical plane as the y-axis. क्योंकि sorry, क्योंकि हमने अभी कहा कि they must have same radical axis. अब same radical axis है तो ये जरूरी है कि तीनों सेंटर्स को क्या होना पड़ेगा, एक ही लाइन पे होना पड़ेगा. ठीक है, हमने कहा मान लेते हैं कि हमने उन्हें किसके ऊपर ले लिया, एक्सिस के ऊपर ले लिया. हम वाई एक्सिस के ऊपर भी ले सकते हैं, हम जेड एक्सिस के भी ऊपर ले सकते हैं, बट क्योंकि एक्स एक्सिस हमारी फर्स्ट और स्टैंडर्ड बेस है हमारा, तो इस करके वी आर टेकिंग द एक्स एक्सिस. तो फॉर एग्जाम्पल दैट डजंट मीन कि यहाँ वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का केस नहीं चल सकता. ठीक है, आई एम जस्ट टेकिंग द केस कि जब सिस्टम ऑफ स्फीयर्स जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है. और जो रेडिकल प्लेन है, डेफिनेटली अगर सेंटर्स मेरे सारे के सारे एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं तो जो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना, वो क्या होएगा, इट इज डेफिनेटली some other plane other than x axis. So if we have three spheres or three dimensional, we have to x axis already we are taken as a base, so rest we are left with yz. So radical plane जो है हमारा वो कैसा हो जाएगा, yz plane जैसा हो जाएगा. ठीक है, तो वो कहता है कि अगर हमने एक ऐसा सिस्टम ऑफ स्फीयर लिया है, ठीक है, जो एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू बन रहा है, मतलब उसके सेंटर्स जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो उसका रेडिकल प्लेन जो है अगर वाईजेड प्लेन है, तो इन दैट केस जो सिस्टम ऑफ कोएक्सियल स्फीयर्स है विद रिस्पेक्ट टू दैट एक्स एक्सिस क्या हो जाएगी, रिड्यूस कर जाएगी. क्यों? क्योंकि अगर हमारे सेंटर्स जो हैं वो लाई कर रहे हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, तो दैट मीन्स व्हाट कि वाई जो है वो हमारा जीरो हो गया, z जो है वो भी हमारा जीरो हो गया. सो जितने भी स्फीयर्स हमारे पास उस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर आएंगे, मतलब जिनके सेंटर्स जो है एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं, उनमें क्या होगा, उनमें सिर्फ x वाला एब्सिसा जो है हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है एक्स एक्सिस का, वो मूव करेगा. सिर्फ y और z क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे. सो अगर मान लो हमारे पास तीन इक्वेशंस भी हैं, हमारे पास चार इक्वेशंस भी हैं, हमारे पास पांच इक्वेशंस भी हैं, तो उनके सेंटर्स जो है वो कैसे हो जाएंगे, उनके सेंटर्स कुछ इस तरह से हो जाएंगे, से u1, 0, u2, 0, u3, 0, एंड सो ऑन. मतलब उनमें जो चीज वेरी करेगी बार बार, कीप ऑन वेरिंग, वो कौन होएगा, वो सिर्फ अपना x का कोऑर्डिनेट होगा, बाकी रेस्ट y और z will remain zero. The same case occurs if we take y-axis. If we take y-axis, then the plane is
xz plane. If we take z axis, then the plane is xy plane. In that case, we are left with y, if we are taking with respect to y axis, then the जो equation है depends only on y coordinate, and if with respect to z axis, then the equation will depend with respect to the z coordinate. So here we are taking the case of x axis. The similar way y axis और z axis के case जो है वो आपके पास चलेंगे. तो यहाँ पे अब b जो है वो हमारी कांस्टेंट टर्म है, तो वो वेरी नहीं करेगी, बट u इज अ पैरामीटर बिकॉज यू कैन चेंज. ठीक है ना, u जो है वो x का कोऑर्डिनेट है. अब जितने स्फीयर्स आते जाएंगे उस सिस्टम के अंदर, उतने u's जो हैं वो हमारे पास क्या होते जाएंगे, क्रिएट होते जाएंगे. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग वी आर लीडिंग टू 3 केसेस. ठीक है, वो 3 केसेस क्या है हमारे पास. अब उसने कहा कि मान लेते हैं कि हमारी लाइन जो है वो x इज इक्वल टू 0 है, और कॉमन रेडिकल एक्सिस जो है वो मैंने क्या ले ली, y एक्सिस ले ली. आप कॉमन रेडिकल एक्सिस z एक्सिस भी ले सकते थे, फिर रिजल्ट्स उसके अकॉर्डिंगली क्या कर जाएंगे, वेरी कर जाएंगे. सिर्फ पहला रिजल्ट जो है वो वेरी करेगा, बाकी रेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स विल रिमेन सेम, क्योंकि 3 केसेस वी हैव. फर्स्ट केस में इन केस इफ आई एम टेकिंग y एक्सिस, तो y का कंपोनेंट मेरे पास आएगा बिकॉज आई एम टेकिंग द लाइन x इज इक्वल टू 0, सो x इज 0. z ऑलरेडी मेरा 0 ही था. ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं रेडिकल एक्सिस को y एक्सिस के अकॉर्डिंगली बना रही हूँ, क्योंकि प्लेन नहीं ले रही ना मैं, उसमें से कोई एक पर्टिकुलर लाइन ले रही. तो yz में से जब मैंने एक पर्टिकुलर लाइन ली, तो मैंने विद रिस्पेक्ट टू z एक्सिस नहीं लिया, विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस ले लिया. तो उसमें y का वेरिएबल जो है वो क्या करेगा, मूव करेगा. अगर मैं z एक्सिस के अकॉर्डिंग लूंगी तो z का वेरिएबल जो है वहाँ पे क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा. ठीक है. So when the common radical axis is y-axis and the line is x is equal to 0, the sphere cut the radical axis if d जो है वो क्या होएगा हमारा, लेस देन 0 है. इसका मतलब स्फीयर की इक्वेशन मेरे पास पड़ी हुई है, जो फॉर्म मैंने ऊपर लिखी रिड्यूस्ड फॉर्म में, और उसमें मुझे दिख रहा है d जो है लेस देन 0 है. तो फ्रॉम दैट आई कैन कंक्लूड दैट कि कॉमन रेडिकल जो एक्सिस है मेरी वो कौन सी होएगी, y एक्सिस होएगी, और लाइन जो है मेरी क्या होएगी वहाँ पे, x इज इक्वल टू 0 होएगी. ठीक है, तो इन दैट केस जो कॉमन पॉइंट स्फीयर के हमारे पास आएंगे, अब क्योंकि x हमने लिया इज इक्वल टू 0, लाइन हमने ये ली है, तो क्योंकि हम x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, सो x तो ऑलरेडी 0 हो गया हमारा यहाँ पे, और z एक्सिस को हमने कंसीडर नहीं करा तो वो भी 0 हो गया. सो वेरिएबल जो है, जो पॉइंट है, जो कॉमन पॉइंट्स आपके पास आएंगे जब दो स्फीयर्स आपस में एक दूसरे को कट कर जाते हैं. ठीक है, तो रेडिकल एक्सिस ये मैंने रेड लाइन में शो की हुई है, और जो स्फीयर्स हैं वो किस तरह से कट कर रहे हैं, वो बार बार आकर कट कर रहे हैं किस पे, y के ऊपर. इन अ सेम वे अगर मैं z एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू लेती तो यही पॉइंट जो है वो 0, 0, प्लस माइनस अंडर द रूट माइनस d बन जाता. ठीक है बेटा. नेक्स्ट केस हमारे पास यहाँ पे आता है कि इफ d is equal to 0 in the above reduced equation, if there is no constant, then the spheres are all tangents to the y-axis. स्फीयर्स कहाँ आके मीट करेंगे, सारे के सारे स्फीयर्स जो है y एक्सिस को सिर्फ टच करके क्रॉस कर जाएंगे, वो उसे कट नहीं करेंगे. प्रीवियस केस में हमने देखा था कि वो क्या कर रहे थे, वो बार बार उसको यहाँ पे इन 2 पॉइंट्स पे आकर कट कर रहे थे. ठीक है, बट इफ d इज इक्वल टू 0, देन स्फीयर जो है वो सारे के सारे दे फॉर्म अ टेंजेंट, मतलब स्फीयर सारे के सारे सिर्फ मीट करके जाएंगे, उसको कट नहीं करेंगे. एंड इफ d इज ग्रेटर देन 0, अगर आपका d पॉजिटिव है, then spheres do not have the common points, for which हमारे पास क्या आ जाएगा, u is equal to plus minus under the root minus d आ जाएगा. ठीक है, and the two spheres into degenerate into 2 points, जो पूरे के पूरे आपके spheres हैं, they will degenerate into 2 points, and these particular points are called limiting points. So basically limiting point में हम यहाँ पे ये बात भी कह देते होते हैं कि whenever radius is equal to 0, so in that case what we are getting the कोएक्सियल सिस्टम में लिमिटिंग पॉइंट्स हमारे पास आ जाते हैं, मतलब पॉइंट सर्कल, बेसिकली पॉइंट स्फीयर जो है वो हमारे पास वहाँ पे क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है. सो दीज आर द 3 केसेस जो हमारे पास अकर कर जाते हैं इन केस अगर हम कोएक्सियल सिस्टम को किसी पर्टिकुलर एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू कंसिडर करते हैं, और वो कंसिडर होगा भी, बिकॉज अगर हम कोएक्सियल सिस्टम की बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि उसके पास सेम रेडिकल एक्सिस है, तो वो इक्वेशन रिड्यूस करेगी ही करेगी आपकी स्फीयर की. वो 3 वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, वो किसी एक कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंगली चलेगी, आइदर विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y और विद रिस्पेक्ट टू z. एंड देन वी हैव 3 केसेस. इफ d इज लेस देन 0, देन जो दो स्फीयर्स हैं
वो रेडिकल एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करेंगे, ठीक है ना, जैसे मर्जी मूव कर रहे हो वो। अगर डी जो है वो आपका 0 के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब जो भी 2 स्फीयर्स, 3 स्फीयर्स, 4 स्फीयर्स, 5 स्फीयर्स, जितने भी स्फीयर्स हैं आपके पास, वो सारे के सारे स्फीयर्स जो है वो क्या करेंगे, सिर्फ टेंजेंट फॉर्म करेंगे वाई एक्सिस के। अगर वाई एक्सिस लिया है मैंने, अगर जेड एक्सिस लिया है तो डेफिनेटली वो जेड एक्सिस के ऊपर टेंजेंट फॉर्म करेंगे, उस केस में वाई वाला कंपोनेंट वहाँ पे नहीं होगा। इनकेस अगर डी जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो स्फीयर्स जो हैं वो उनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं रहेगा और वो डीजेनरेट कर लेंगे इनटू 2 पॉइंट्स, and these particular points are called the limiting points of the coaxial system of spheres. So this lecture is all about the theoretical part of coaxial system of spheres. Do watch my next lecture. In next lecture I will discuss the numericals relating to this particular topic. Thank you for watching the video.